all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 4 science, that is safety and first aid. You know, accidents can happen anywhere or at any time. So we should always be safe at every place. So there are some safety rules that we should follow on roads, in our school or in our homes. And what do you mean by first aid? You know what is first aid? The first treatment given to an injured person before the arrival of the doctor. That is known as first aid. So let's begin with this lesson. In this lesson, we will learn about safety at home. Second, safety on the roads. Third, safety playground. Fourth, first aid. Fifth, first aid box. So here is the self-survey. You have to identify the following road signs and write their names in the space given below. That is, first sign is no smoking. No smoking. Second is no parking. Third, that is your homework. And fourth, that is also your homework. You can search this and you can write the answers by your own. Now, accidents may take place at any place or at any time. Accidents may take place at any place at any time. कहीं भी हो सकता है, किसी भी time. It takes place when we are careless. कब होते हैं accidents? जब हम careless होते हैं. It may cause harms to our life and property. Accidents क्या कर सकते हैं? हमारी life को harm cause कर सकते हैं और हमारी property को harm cause कर सकते हैं. It gives pains and sufferings. क्या बोलता है हमें accidents से pains मिलते हैं और sufferings मिलती हैं. Most accidents can be avoided if we are careful and follow safety rules. बहुत सारे accidents को हम avoid कर सकते हैं. कैसे? अगर हम careful हैं और हम safety rules को follow कर रहे हैं. Safety rules should be obeyed. हमें हमेशा safety rules को follow करना चाहिए, उन्हें obey करना चाहिए. All the times at home, at school and on the roads. हमें कहाँ safety rules को follow करना चाहिए? हर जगह, schools में, homes में और roads पे. That aspect of media. First point, safety refers to the state of being safe. Safety क्या होता है? एक ऐसा state जहाँ आप safe feel कर सकते हो, जहाँ आपको कोई injury ना हो, जहाँ आपको कोई harm ना हो. That is safety. Now, safety at home. आपके घर पे safety कैसे हो सकती है? We live in a house because it keeps us safe. हम house में क्यों रहते हैं? Because वो हमें safe रखता है. A house is only safe if we make it safe. House कब safe होता है? अगर हम उसको safe बनाते हैं. Many accidents such as burns. बहुत सारे accidents होते हैं जैसे burns हो गए, false electric shock हो गए and poisoning हो गई. Do take place. ये take place करता है. To avoid these accidents, we must therefore keep our home safe. इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने homes को safe रखना चाहिए. Burns से हम कैसे safe रख सकते हैं? Accidents of fire are mostly seen in the kitchen and can cause serious injury and even death. जो accidents कहाँ पे होते हैं? हमारी fire से होते हैं, हमारी kitchens में, हमारे homes में. उससे क्या हो सकती है? Serious injuries हो सकती है, burns हो सकते हैं और उससे हमारी death भी हो सकती है. To avoid such accidents, you should do not go near the fire. आपको fire के पास नहीं जाना चाहिए. Second, do not wear nylon clothes in the kitchen. आपको nylon clothes कभी भी kitchen में नहीं पहननी चाहिए. Third, never fail to turn off the gas stove when not in use. आपको कभी भी gas stove को बंद करना नहीं भूलना चाहिए जब वो use में ना हो. Have them checked regularly for leakages. और उन्हें regularly check करना चाहिए बार-बार जैसे उनमें leakage ना हो. Now false. False means गिरने से कैसे हो सकता है? First point, keep the floor of your bathroom clean and dry. So आपके bathroom का floor होता है उसको आपको clean और dry रखना चाहिए. Do not let it become slippery as you may slip and fall down. उसको slippery ना छोड़े जिससे आप slip हो सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं. Second, use a ladder or a stool to reach things placed high. आपको क्या यूज करना चाहिए? लेडर को या स्टूल को यूज करना चाहिए जो आपकी ऊंची चीजें रखे उनको पहुंचने के लिए. Third, never running up and down the stairs.
आपको अप एंड डाउन रन नहीं करना चाहिए अपने स्टेयर्स पे. इफ यू ट्रिप यू मे फॉल अ लॉन्ग वे डाउन. अगर आप ट्रिप कर गए तो आप बहुत ज्यादा नीचे तक गिर सकते हो. नेक्स्ट, toys, clothes and other household articles should not be left lying here and there. जो टॉयज होते हैं आपके, क्लोथ्स के आइटम, हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, वो इधर उधर नहीं बिखरे होने चाहिए. When we are in hurry, we may not all look on the floor. जब हम जल्दी में होते हैं हम कई बार अपने फ्लोर पे नहीं देखते. We might trip and fall. हम ट्रिप कर सकते हैं, मतलब स्लिप कर सकते हैं और गिर सकते हैं. Always put your things away in their right place. आपको अपनी चीजों को हमेशा उनकी राइट प्लेस पे रखना चाहिए. नाउ इलेक्ट्रिक शॉक. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक शॉक? यू मस्ट हैव सीन electrical toasters, irons, kettles, stoves, lamps, refrigerators and electric heaters being used in your homes. आपने बहुत सारी चीजें देखी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखे जो आपके घर में मम्मा यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, लाइक heaters, electrical toasters for making your sandwiches, irons, kettles, stoves, lamps, refrigerators, electrical heaters. इस आपकी होम्स में यूज होती है. इफ दे आर नॉट हैंडल्ड केयरफुली, अगर उनको हम ध्यान से केयरफुली उन्हें हैंडल नहीं करेंगे, दे कैन गिव अ बैड शॉक और कॉज अ फायर इन द हाउस. तो क्या कर सकते हैं, गंदा सा शॉक दे सकते हैं, हमारे घर में फायर भी, आग भी लग सकती है. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स. जो इलेक्ट्रिसिटी से आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अगर उन्हें अवॉइड करना है तो यू शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट वन इज Do not touch electrical fittings with wet hands. आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए. You may get electric shock. उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. Second, do not go close to a table fan. आपको टेबल फैन के पास नहीं जाना चाहिए. हीटर, टोस्टर, लैम्प्स एक्सेट्रा के पास भी नहीं जाना चाहिए. When they are working, जब वो चल रहे होते हैं, जब वो प्लग इन होते हैं. The switch should be turned off before touching them. उससे पहले आपको सबसे उनको टच करने से पहले आपको उनके स्विच को टर्न ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. Now, if any wiring is old, कोई भी वायरिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो रही है, it should be checked and replaced it if needed. उसको चेक करो और रिप्लेस कर दो अगर उसको रिप्लेस करने की नीड है तो. नेक्स्ट, इन केस यू गेट अ शॉक, अगर आपको कोई शॉक लगता है और नोटिस अ स्पार्क, या आपको कोई स्पार्किंग होती है दिखे किसी वायर में, टर्न ऑफ द मेन स्विच. आपको तुरंत एक मेन स्विच होता है, मेन पावर सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए. नेक्स्ट, स्मॉल चिल्ड्रंस मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आप छोटे हो चिल्ड्रंस हो, आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए. नॉर शुड दे ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिक वायर. ना उन्हें इलेक्ट्रिक वायर ट्राई करना चाहिए रिपेयर करने के लिए. प्लग्स, फ्यूजेस और बल्ब्स भी उन्हें टच नहीं करने चाहिए. नाउ पॉइजनिंग. पॉइजनिंग क्या होती है? स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड कैन कॉज पॉइजनिंग. जो स्पॉइल्ड होता है या कोई बाहर उगड़ा हुआ, मतलब बिना अनकवर्ड फूड रखा हुआ है, दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. सेकेंड, पॉइजनस केमिकल्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली एंड अवे फ्रॉम ईटिंग थिंग्स. आपको जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, आपको अपने बहुत दूर रखने चाहिए, छोटे बेबीज से और मतलब खाने की चीजों से भी बहुत दूर रखने चाहिए. नाउ सेफ्टी ऑन रोड्स. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ऑन द रोड ड्यू टू केयरलेसनेस. आपके रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, उससे बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, केयरलेसनेस को अपने रोड्स पे. To avoid road accidents, follow the given rules, given steps. अगर आपको अवॉइड करना है उनको एक्सीडेंट्स को, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज फर्स्ट वन, वॉक ऑन फुटपाथ और ऑन द पेवमेंट. आपको फुटपाथ को या फिर पेवमेंट पे वॉक करना चाहिए. सेकेंड, क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. आपको जब भी रोड क्रॉस करनी है, आपको हमेशा अपने पहले राइट में देखना चाहिए, देन टू द लेफ्ट, देन अगेन टू द राइट. Then you should cross the road from the zebra crossing, that is pedestrian crossing. Third, look for vehicles that are about to take turn. आपको उन vehicles के लिए देखना चाहिए जो एकदम टर्न लेने वाले होते हैं. At the corner before crossing a road. रोड क्रॉस करने से पहले उन vehicles को देखो जो टर्न लेने वाले हैं. Next, do not play on the road. You should never play on the road. अगर आप play कर रहे हो रोड पे, कोई अचानक से कोई vehicle आ गई, you can get hit by that. Next, if you're riding a bicycle
ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। अगर आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में रहना चाहिए रोड के। शो योर हैंड व्हेन यू टर्न, और आपको हैंड दिखाना चाहिए जब आपको टर्न करना है। अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट हैंड, राइट टर्न करना है तो राइट हैंड। अवॉइड डबल राइडिंग, आपको डबल राइडिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस और ट्रेन, आपको रनिंग बस और ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस, आपको फुटबोर्ड पे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए जो मूविंग बस की होती है। नाउ सेफ्टी इन प्लेग्राउंड्स, हाउ कैन यू बी सेफ इन द प्लेग्राउंड्स? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इवन व्हाइल प्लेइंग, खेलते टाइम भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दैट इज, डू नॉट प्ले नियर पूल और टैंक, आपको पूल और टैंक के पास कभी नहीं खेलना चाहिए। यू कैन गेट इनटू इट समटाइम्स। सेकंड, डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग, आपको एक दूसरे को खेलते टाइम पुश नहीं करना चाहिए, आपको चोट लग सकते हैं। यू कैन गेट इंजर्ड फ्रॉम दैट। थर्ड, नेवर प्ले रफ गेम्स और रन अबाउट रैशली, आपको रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए और गंदी तरह भागना नहीं चाहिए। Fourth, always follow the rules of the games. You should always follow the rules that are in the games. Now, what do you mean by first aid? The first treatment given to an injured person before the arrival of the doctor, that is known as the first aid. First aid is the immediate physical and medical attention needed by the injured or sick person before the proper medical aid arrives. क्या होती है first aid? इट इज द इमीडिएट फिजिकल और मेडिकल अटेंशन, वो एक फिजिकल और मेडिकल अटेंशन होती है इमीडिएट वाली, जो किसको नीडेड होती है? इंजर्ड और एक्सीडेंटल पर्सन को नीड होती है और सिक पर्सन को बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव, जब तक कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं आ जाता। एलिमेंट्री फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेजर्स कैन रिड्यूस सफरिंग और कैजुअलिटीज। जो एलिमेंट्री फर्स्ट एड होती है और जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकता है किसको? सफरिंग्स, रिड्यूस सफरिंग्स और कैजुअलिटीज, मतलब कोई कैजुअलिटी होने से बचा सकते हैं, कोई गलत का हादसा होने से बचा सकते हैं। बाय लर्निंग टू गिव फर्स्ट एड यू कैन हेल्प अदर्स एंड योरसेल्फ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर आप लर्न कर लेते हो कि हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं किसी को, तो आप कोई कैजुअलिटी होने से बचा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है तो आप अपनी फर्स्ट एड अपने आप को तुरंत दे सकते हो। यू कैन हेल्प योरसेल्फ इन दीज केसेस ऑल्सो। Common emergencies that needed first aid are bleeding, wounds, faints, insect bites, snake bites and burns. Common emergencies कैसी होती है? जैसे first aid चाहिए होती है, कोई bleeding wound है, कोई कट लग गया, फेंट हो गए, आप चक्कर आ गए आपको, इंसेक्ट बाइट्स हो गई, स्नेक बाइट हो गई, या फिर कोई बर्न हो गया। These are the common emergencies. When an accident occurs, remember the following hints. जब कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो आपको ये hints को याद रखना चाहिए। A few hints are, फर्स्ट वन, डू नॉट गेट फ्राइटेंड और पैनिक, आपको कभी भी एकदम घबराना नहीं चाहिए। सेकेंड, डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज हर्ट, जो भी एक हर्ट पर्सन है उसके आसपास एकदम क्राउड नहीं बनाना चाहिए। थर्ड, इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ डॉक्टर, तुरंत आपको एक किसी एडल्ट को या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फोर्थ, ट्राई टू कीप द पर्सन कंफर्टेबल, कि उस पर्सन को कंफर्टेबल होने का ट्राई करवाइए। एंड नाउ व्हेन अ पर्सन हैज कट एंड वाउंड, जब किसी पर्सन को कोई कट लग जाता है, वाउंड लग जाता है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो? हाउ कैन यू बैंडेज हिम? वॉश द वाउंड विद वाटर एंड क्लीन इट, उस वाउंड को आप वॉश कीजिए और उसको क्लीन कर दीजिए, वाटर से वॉश कर सकते हैं। सेकेंड, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एंटीसेप्टिक लोशन और कॉटन एंड वाइप द वाउंड, तो आप क्या कर सकते हो? फ्यू ड्रॉप्स डालिए एंटीसेप्टिक लोशन के, कॉटन से, और उसको वाइप कर दीजिए वाउंड को। थर्ड, इन केस ऑफ माइनर कट्स अप्लाई बैंडेज, अगर कोई माइनर सा कट है उस पर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। इफ द वाउंड इज बिगर, बैंडेज इज विद स्टरलाइज्ड गॉज आफ्टर अप्लाइंग सम एंटीसेप्टिक लोशन। आप क्या कर सकते हो? अगर कोई बड़ा वाउंड है तो उस पर स्टरलाइज्ड गॉज लगा के उस पर अप्लाई कर दीजिए एंटीसेप्टिक लोशन। When a person burns, जब कोई पर्सन जल जाता है, क्या कर सकते हैं? वॉश द बर्न्ड एरिया अंडर रनिंग वाटर, जो बर्न्ड एरिया होता है आप उसको वॉश कर सकते हो रनिंग वाटर में। सेकेंड, डिप द बर्न्ड एरिया इन आइस कोल्ड वाटर और अप्लाई एन आइस पैक, क्या कर सकते हैं? डिप कर दीजिए बर्न्ड एरिया को किसमें? आइस कोल्ड वाटर में, और वहां पे आइस पैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लीव द वाउंड ओपन,
एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे, वाउंड पे, और उस वाउंड को ओपन छोड़ सकते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज फेंटेड, जब कोई पर्सन फेंट हो जाता है क्या करते हैं, इफ अ पर्सन फेंट्स मेक हिम लाई फ्लैट हिज हेड लो, उस पर्सन को नीचे की तरफ सर रख के लिटा देना चाहिए, उसे फ्लैट लाई कर देना चाहिए। दिस हेल्प इन सप्लाई ऑफ एयर एक्स्ट्रा ब्लड टू द ब्रेन, उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है वो ब्रेन में सप्लाई करता है। अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन, उससे फ्रेश एयर आती है। कीप्स क्वाइट एंड लेट हिम रेस्ट, और फिर उसको शांत छोड़ दीजिए, उसको रेस्ट करने दीजिए। नाउ व्हेन बिटन बाय अ इंसेक्ट, जब कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है क्या करना चाहिए। Sometimes insects such as bees, wasps and mosquitoes bite or sting us. कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स हमें बाइट कर लेते हैं, जैसे वाप्स, बीस, मॉस्किटोज हो गए, क्या कर लेते हैं, हमें बाइट कर लेते हैं या फिर स्टिंग कर देते हैं। These bites or sting cause severe pain and swelling. जो ये बाइट्स होती है क्या करती है, सीवियर पेन और स्वेलिंग्स ला देती है हमारी स्किन पे। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वन, प्लेस आइस ओवर द अफेक्टेड स्पॉट, हमें आइस लगा देनी चाहिए कोई इफेक्टेड स्पॉट पे। विद लाइम वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम टू गिव रिलीफ, लाइम वाटर लगा के अप्लाई कर देना चाहिए, और पेस्ट करके आना चाहिए, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा लगाना चाहिए एंड कोल्ड क्रीम टू गिव रिलीफ। सेकेंड, प्लेस आइस ओवर द अफेक्टेड स्पॉट, वहां पे आइस लगानी चाहिए जो एक अफेक्टेड स्पॉट होता है। इट विल ऑल्सो गिव सम रिलीफ, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। Third, a compressed solution of with ammonia water also gives relief. जो compressed solution होता है किसका, ammonia water का, उससे भी relief मिलता है। And the last one, apply calamine lotion if there is itching. आपको calamine lotion apply कर देना चाहिए अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा itching है तो। Now first aid box. आपके first aid box में क्या क्या होना चाहिए? We should have a first aid box that contains first कॉमनली यूज मेडिसिन होनी चाहिए उसमें, फीवर की, कोल्ड की, कफ की। सेकेंड, स्टिकी टेप होनी चाहिए जिससे अगर कोई बैंडेज है उसको आप स्टिक कर सकते हो। थर्ड, एन एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, एन एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। स्टरलाइज्ड गॉज एंड कॉटन पैड्स होने चाहिए, स्टरलाइज मतलब जो अच्छे से वॉश्ड है, क्लीन है। अ पेयर ऑफ सिजर्स होनी चाहिए, सम बैंडेज होनी चाहिए, a bottle of methylated spirits, some sachet of oral rehydration solution like ORS, जो आपको अगर फेंटिंग हो जाए अचानक से तो आप ORS का सॉल्यूशन दे सकते हैं। a crepe bandage होनी चाहिए जो आपके वाउंड्स पे, जो आपके स्वेलिंग वाली बाउंड्स होते हैं जो पेनफुल होता है उन पे आप लगा सकते हैं। इट इज गुड टू नो फर्स्ट एड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी, तो हमें अच्छा होता है हमारे लिए पता होना कि फर्स्ट एड क्या होती है और हमें बी प्रिपेयर रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए। बट फर्स्ट रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए विच हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एज देयर इज अ थॉट दैट इज prevention is better than cure. Now think and answer the following question. What should we do in case of insect bite? अगर insect bite है तो हमें क्या करना चाहिए? There are many points. अगर insect bite होती है तो क्या करना चाहिए? Place ice over the affected spot and with lime water and apply a paste of baking soda and cold cream to give relief. Or you can apply calamine lotion if there is itching. There are many points you can write from here. Now next page. Here is the quick brush up of this whole lesson. First point, accidents may take place at any time. Accidents कहीं भी हो सकता है, किसी भी time हो सकते हैं. Second, many accidents such as burns, electric shocks, falls, poisoning do take place. कुछ accidents होते हैं जैसे burns हो गई, electric shocks हो गई, falls हो गए, falls मतलब गिरना हो गया, poisoning हो गई, ये बहुत सारे accidents हो सकते हैं. Third, walk on the footpath or the pavement. You have to always walk on the footpath or on the pavement. कभी भी आपको roads पे walk नहीं करना चाहिए. Fourth, elementary first aid and emergency measures can reduce suffering. जो elementary first aid होता है और जो emergency measures होते हैं वो quick suffering को reduce कर सकते हैं, कोई mishappening होने से बचा सकते हैं. And the last one, common emergencies that need first aid are bleeding wounds, fainting, insect bites,
फेंटिंग इंसेक्ट्स बाइट, स्नेक्स बाइट्स एंड बर्ड्स, ये क्या होती है हमारी कॉमन इमरजेंसीज होती है जिनको हम फर्स्ट एड इजीली दे प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.